but my parents had one thing, right? So that they wanted me to start my studies in Hindi medium actually. Oh. So yeah, so I did my studies in Hindi medium till about fifth standard actually, and their reasoning was that like you should build your base in Hindi, and then you go to English actually, right? So from fifth standard to sixth standard, they actually put me in a semi-English medium. हमने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी उसके बाद सारी, क्योंकि जब फीस वापस मिल गई उसके बाद। जब फीस वापस मिल गई सारा खर्चा वो उठा रहे थे, ठीक है, पैसे बच रहे थे। उसके बाद मैंने मूवी देखना शुरू कर दिए। रोज रात को मूवी देख रहे होते थे, पीछे टीचर्स बैठे होते थे कोई डाउट पूछने के लिए। तो हमारे जिन बच्चों को मिला था 5-7 बंदों को जिनको भी वो मिला था, स्कॉलरशिप मिला था, उनमें से किसी का भी IIT में नहीं हुआ। 10 रुपये एक घंटे में साइबर कैफे जा सकते थे आराम से, वहाँ पे सारा वो मूवीज का कलेक्शन होता था। अच्छा। और वो 11 अगर आप 10-11 बजे तक साइबर कैफे में, वो शटर बंद कर देंगे 11 बजे, सुबह 4 बजे छोड़ेंगे आपको। 5 घंटे बैठ के करो जो करना है वहाँ पे। आई रिमेम्बर दैट इंसिडेंट। Me, my father, and my friend's father entered into the college on the first day, right? And when they'd come to drop us actually, तो वो उसके एक सीनियर था हिसार के ही मिले थे, उनसे पूछा कहाँ प्लेसमेंट होने का, टीसीएस कितने का पैकेज लगा। सबका कुछ नहीं होता है हमेशा, कितने का पैकेज लगा। आई थिंक इस सेड 2.4 लाख और 3 लाख। उस टाइम तो लगा कि बहुत अच्छा है, मतलब हम दैट उस टाइम तो ये लग रहा था कि हाँ लाइफ सेट होगी। Hey everyone, welcome to yet another interesting episode of Not So Famous. I have with me my dear friend Vikas Kakkar. He's a principal product manager with Amazon, very good friend, avid cyclist, fitness freak, and a very successful person in his career. He has demonstrated sustained good growth in companies, very, very competitive companies like Amazon, Ola. He's an MBA from IIM Bangalore, an engineer from NIT Durgapur. You can all relate to this engineer MBA combo. And let's hear from him how Not So Famous story has evolved. And let's understand what traits got him there. Hello everyone. Cool. Excited to be here. Thanks for joining us, Vikas. So we usually do this. We try to take you into your childhood. We try to understand how your story has unfolded, and then try to map it to what caused your success and the success you have achieved in your professional life. So take us back to your childhood and tell us how your childhood was, how you were as a kid, where were you, how was your family like. Take us through some of the memorable moments of your childhood. Yeah, okay. So I was born and brought up in Hisar, which is a small town in Haryana. And both my parents were in government jobs, right? And right throughout my childhood, actually, I was a good person in terms of I was not naughty, etc. I was very serious in my studies. So my parents didn't bother me on my studies at all, because I was always punctual in my work, etc. Right, and get things done on time. But my parents had one thing, right? So that they wanted me to start my studies in Hindi medium actually. Oh. So yeah, so I did my studies in Hindi medium till about fifth standard actually, and their reasoning was that you should build your base in Hindi, and then you go to English actually, right? This is a very contrarian view, right? People generally want their kids to start in English. So it is a contrarian view, and there were few people within our circle also who had the same thought. Okay. And I think that was good actually. It didn't affect me at all. So till around fifth standard, I was in Hindi medium, completely Hindi medium, and I hadn't even touched computer by the time I reached fifth standard, or even sixth standard actually. So from fifth standard to sixth standard, they actually put me in a semi-English medium. Okay, so what is semi-English medium? Yeah, so I think this is a small town concept, I guess. So where not all the subjects are in English. So you would only keep maths and science in English in the semi-English medium. Rest, social studies, etc. will still be in Hindi. Okay. Right? So this was a base so that I could jump to from completely in Hindi medium to English medium. So you're taking a transition basically, right? So So that was easy for me because I was always good in science and maths actually, and those were my favorite subjects at that point of time also. And in the classes also I was top 2, top 3, never first actually. First आने वाले बच्चे हो? First नहीं हूँ, second और third आने वाला हूँ. Okay. हाँ, तो top तो मैंने खैर कभी भी नहीं किया. अच्छा. तो
तो कंटेंट विद सेकंड एंड थर्ड प्लेस फाइन. एंड उसके बाद फिर उसमें गया. उसके बाद देन आई आफ्टर सिक्स एक्चुअली didn't like my studies trajectory didn't change in six in sense like I moved from class rank 2 3 to 7th 8th actually because of that semi thing. And then I moved on to completely English medium actually. Okay. And that's where I think like I went to 7th standard in a school, Holy Angel school basically, where actually all of the students who were there, right, they were right, all were in the English medium from starting. Okay. And so everybody used to converse in English. And there used to be a fine if you actually if you talk in Hindi actually. I know this thing. Yeah, and I was not comfortable in English like conversing day to day in English at all, right? So and the second thing which changed for me was there was a computer actually as a subject, and this was introduced to me in 7th standard for the first time. And all the people in the school were actually like studying computers in like 3rd 4th grade, right? So I wasn't even like, and in that year also there was a coding actually, so I wasn't comfortable at all with that. So that was my and then from 7th onwards till about 10th actually, like I was in the same school. In fact 11th and 12th also I did in the same school. I'll come to 11th and 12th part. So but 7th my grades dipped a lot actually. And the reason it dipped a lot is because it was obvious, English. right? Like I was not doing too well in English. There was different even as in English as a subject there was a different way on how the questions would come in exam, etc. Right? And and I was struggling in 7th standard. So and all new subjects, new atmosphere, everything was struggling. But then I took actually in the summers I took some extra classes, etc., especially for computers. So I didn't take summer holidays that time of time, like 2 months holidays, right? So I used to go to school every day. So grades का struggle तो ठीक है. I think people would be interested in knowing fine कितना पे किया या मॉनिटर से दोस्ती कर ली थी जो नोट करता था कि फाइन मतलब बेसिकली ना थोड़ा चलता था, ऐसा हुआ नहीं कभी फाइन. मतलब वो रूल था एक आधी बार थप्पड़ वप्पड़ पड़ा उसका ठीक है. तो कि क्या है वो है, बट आती नहीं जब इंग्लिश तो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, मतलब इट्स फाइन. तो कई बार तो लगता था कि यार इंडिया में है क्या, कि मतलब कि हिंदी तो आनी चाहिए, मतलब क्या दिक्कत क्या है. तो वो सब था. थोड़ा रेबेलियस भी होते थे उस टाइम के ऊपर कि ठीक है मार लो एक दो, क्या दिक्कत है, बट एक दो बार पड़ी है मार, ऐसा तो ठीक है. तो वही था. उसके बाद फिर वो कंप्यूटर्स सीखा. फिर एक्चुअली 7th में जब मैंने समर कोर्स किया तो आई यूज्ड टू एक्चुअली लाइक कंप्यूटर्स एक्चुअली. देन अल्टीमेटली इट वाज ऑल लॉजिक, राइट? सो उसके बाद एंड आई यूज्ड टू अंडरस्टैंड लाइक कैसे प्रोग्रामिंग करनी है, एटसेट्रा. इनफैक्ट आफ्टर 7th 8th में तो उसके बाद तो मैं अगेन एक्चुअली कंप्यूटर्स में तो मैं फिर से टॉप करने लग गया था. एंड सेकंड थर्ड मार्क्स आने लग गए थे. एंड तो वो था. एंड आफ्टर एंड 7th was downgrades, and after 8th everything went okay actually. You like except English as a subject everything was fine. English में वो आती थी वो फालतू की पोएम्स रटनी है, वो सब करना है, वो सब तो मेरे को समझ नहीं आता था क्यों करना है जिंदगी में. रट्टा भी मारना होता था सोशल स्टडीज में. रट्टा मारने में ठीक था. अच्छा. तो रट्टा में मार सकता था सब कुछ. तो जो बड़े बड़े क्वेश्चन आते थे सोशल स्टडीज के वो सारे वो गाइड से पढ़ने होते, वो सारे रटे हुए होते थे मुझे. तो वो सब था. तो ये 10th तक की स्टोरी थी. 10th में हुआ, एग्जाम दिया. उसके बाद उसके सबको एक्चुअली वो करनी थी, इंजीनियरिंग करनी होती है. उसके बाद नॉन मेडिकल जाना होता है. क्वेश्चन भी नहीं आया कुछ कि माय पेरेंट्स वांटेड मी टू गो टू मेडिकल. अच्छा. ओके. दे वांटेड me to become a doctor. Okay. But मेरा पता नहीं, and I don't have a reason actually for this, but मेरा fascination हमेशा से इंजीनियरिंग की तरफ था. And maybe because one of my best friend was actually always thinking to go to engineering or non-medical, बस वही था. Good enough a reason. And secondly वहाँ पे I think वो शायद 12th में हुआ था या 10th में, 10th 11th में हुआ था कि there was a IIT rank 5 which came actually in the and I don't remember it was 10th or 12th, but या फिर IIT की फैसिनेशन आई थी उसके बाद, क्योंकि हिसार से 2 रैंक आए थे, IIT 5 and IIT 26 ऑल इंडिया. एंड सडनली दे बिकेम फेमस ओवरनाइट इन द in entire small town, right? And Hisar became a sort of an educational hub of Haryana, right? तो वहाँ पे वो था. तो पर वो डाउट नहीं था कि कहाँ जाना है, मतलब नॉन मेडिकल ही जाना था वो. मतलब घर वाले पुश किया था उन्होंने. फिर बीच में सोचा कि दोनों ले लेते हैं साथ में, मेडिकल भी लेते हैं नॉन मेडिकल भी लेते हैं, बायो भी तो सब्जेक्ट है, क्या दिक्कत क्या है, मतलब. और रट्टा स्ट्रांग है अपना. बट हाँ फिर वही किया कि सबको कि क्यों लेना है. तो
वो किया। उसके बाद एक वहाँ पे हिसार में एक फंडा होता था कि आपको अगर आप एंड दैट यूज्ड टू बी लाइक सब करते थे, जिसको इंजीनियरिंग जिसको आईआईटी की तैयारी करनी है वो कोई बंदा स्कूल नहीं जाएगा। 11th और 12th में हम स्कूल गए ही नहीं, तो वो दैट यूज्ड टू बी आवर एक्स फैक्टर एक्चुअली कि हाँ हम स्कूल नहीं जाते, हम आईआईटी की तैयारी करते हैं इसलिए हम स्कूल नहीं जाएंगे। स्कूल सेम ही था। स्कूल सेम था। स्कूल हम कभी गए नहीं 11th 12th के अंदर, कभी भी नहीं गए एक्चुअली। और बस हम ट्यूशन्स लगा रखे थी हमने, ट्यूशन पे जाते थे, ट्यूशन पे पढ़ते थे। और मेरा ये था कि मुझे कोटा जाना था। घर वालों ने कहा कि नहीं कोटा नहीं जाना, मतलब अभी तो यहीं पे पढ़ लो। और एंड उनके रीजंस मतलब मैं उस टाइम पे समझ नहीं पाया था कि क्यों नहीं जाना। मतलब वो एक वो थोड़ा सा वो होता है मेंटेलिटी कि हाँ कि तुम मतलब अभी बाहर क्या जाके कैसे रहोगे, यहाँ पे अच्छी स्टडीज़ हैं और वो सब। बट वो था कि मतलब अल्टीमेटली डिसाइड नॉट टू गो। हिसार में अच्छे टीचर्स थे एक्चुअली, ऐसा नहीं था कि नहीं थे, और निकले भी थे हिसार से रैंक, तो मैंने फिर हिसार में ही स्टडीज़ किया। तो आईआईटी की तैयारी शुरू करी थी? हाँ आईआईटी की तैयारी शुरू करी थी घर बैठ के आराम से। और मतलब वही इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के ट्यूशन लगा ली, और बोर्ड की कुछ नहीं तैयारी करी। और उसके बाद बस वो किया 11th और 12th में बैठ के कोचिंग किया और कुछ नहीं किया। तो 11th 12th में कोचिंग किया, और उसके बाद मतलब उस टाइम भी स्टडीज़ में ठीक ही था, बट क्रैक नहीं हुआ था 12th के बाद। तो क्रैक हुए थे मतलब हरियाणा के कॉलेजेस क्रैक हो गए थे। मतलब एनआईटी क्रैक हुआ था कुरुक्षेत्र में, बट मतलब AIEEE में एनआईटी मिला था मुझे, बट मेरा वही आईआईटी का ही एम था। तो फिर मैंने कहा कि ड्रॉप ले लेते हैं। तो फिर मैंने ड्रॉप लिया था। घर वाले डिसअपॉइंटेड थे उस टाइम पे कि हाँ 2 साल तुमने करा भी है कुछ हुआ नहीं है और वो सब, क्योंकि एम तो हमेशा से आईआईटी का था। उसके बाद फिर किया वो छोड़े, मतलब फिर उसके बाद मैंने फोर्स किया था कि मैं कोटा जाऊँगा 1 साल पढ़ने के लिए। तो मैं कोटा गया था, बट अगेन फिर मैं क्योंकि काफ़ी लेट डिसाइड किया था मैं कोटा जाऊँगा, तो मैं बंसल्स वगैरह के अंदर नहीं, क्योंकि हुआ नहीं गया था उनका, मैं टेस्ट नहीं दे पाया था क्योंकि ऑल द डेडलाइंस हैज क्लोज्ड, बोथ बंसल्स एंड रेजोनेंस का था एक्चुअली। वो आई वेंट टू एक न्यू इंस्टीट्यूट कॉल्ड नारायणा एक्चुअली। तो वहाँ पे इट वाज रिसेंटली ओपन, वन ऑफ माय फ्रेंड एक्चुअली हु वाज देयर इन कोटा फॉर लास्ट 2 years, he went to that institute, and he had some like the director of that institute actually knew him, and he was a star faculty at Bansals in chemistry, and then he was opening that institute and setting up that institute. So I went to that institute, and it was a good institute actually, and top teachers etc. तो वहाँ पे फिर पढ़ाई शुरू करी। उसके बाद अगेन पहली बार था घर से बाहर रहने का सीन, मतलब कभी घर से वो रहे नहीं है और वो सब। बट हाँ स्टडीज़ फिर वहाँ पे अच्छी हो रही थी। अगेन वहाँ पे टॉप 2 टॉप 5 स्टूडेंट्स में रहता था। उसके बाद उन्होंने वो भी किया कि लाइक यू गेट अ कंप्लीट स्कॉलरशिप, यू गेट ऑल द रिफंड्स बैक, ऑल द मनी बैक एक्चुअली, बिकॉज यू आर इन टॉप 5, यू हैव 24 hours एक्सेस टू टीचर्स। सो हमारे साथ रहते थे, हमें सारा कुछ दे दिया उन्होंने वहाँ पे ही। किया। हाँ पर उसका एक वो इफेक्ट हुआ था कि हाँ हमने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी उसके बाद सारी, क्योंकि जब फीस वापस मिल गई जब फीस वापस मिल गई सारा खर्चा वो उठा रहे थे, ठीक है पैसे बच रहे थे। उसके बाद मैंने मूवी देखना शुरू कर दी। रोज रात को मूवी देख रहे होते थे, पीछे टीचर्स बैठे होते थे कोई डाउट पूछने के लिए। तो हमारे जिन बच्चों को मिला था 5-7 बंदों को जिनको भी वो मिला था स्कॉलरशिप मिला था, उनमें से किसी का भी आईआईटी में नहीं हुआ। नारायणा वाले देख रहे हो ना क्या होता है स्कॉलरशिप मिलती है। तो उसके बाद फिर हाँ उसके बाद फिर वही फिर आईआईटी में नहीं हुआ दोबारा से, फिर AIEEE में हुआ, फिर NIT, I went to NIT दुर्गापुर at that point of time in electronics and communication. So हाँ यही था मतलब अगेन हाँ इट वाज अ डिसअपॉइंटमेंट कि हाँ आईआईटी में नहीं हो गए फिर NIT में गए हो। बट ठीक है मतलब जब जो था उस टाइम तो डिसअपॉइंटमेंट था, बट अभी लुकिंग बैक इट डजंट मेक दैट मच सेंस। तो कोटा के कुछ मेमोरेबल इंसिडेंट्स याद है? लाइक कोटा ऑलवेज इज अ important part in everybody's journey who has been through that process. So, हाँ कोटा के इम्पोर्टेंट इंसिडेंट्स एक्चुअली आई थिंक मेरे ख्याल से एक तो मुझे सबसे ज़्यादा ये रहता है कि हाँ पूरी रात पढ़ना, रात को बैठ के अगर मतलब सुबह रात को अगर पढ़ने का मन भी नहीं है तो द एटमॉस्फेयर इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट वहाँ पे एक्चुअली, राइट। तो वहाँ पे लाइक यू विल सी कि वहाँ पे लोग बातें भी सारी IITs की ही चल रही हैं, राइट। डिस्कशन टॉपिक ऐसा नहीं होगा कि मैच में क्या हो रहा है, डिस्कशन टॉपिक होगा अच्छा तुम्हारे कितने नंबर है आज, उसमें उस बंदे ने इतने स्कोर कर दिया, उसने स्कोर कर दिया, टॉपर्स आर सॉर्ट ऑफ सेलिब्रेटेड, उसका रैंक इतना आया, इस इंस्टीट्यूट ने इतना फोड़ दिया वो फोड़ दिया। तो मतलब डिस्कशन डिफरेंट होता था, डिस्कशन होता था अच्छा
आई थिंक वो इरोडॉव की बुक होती थी राइट, हाँ, ये इस Irodov क्वेश्चन ये book. मैंने ये क्वेश्चन कर दिया इतनी देर में, वो कर दिया, तो ऐसा सब डिस्कशन होता था. इट वाज ऑलवेज स्टूडियस एनवायरनमेंट, ऑलवेज फील कॉम्पिटिटिव अबाउट इट. बट आई थिंक one thing is that जो more important in Kota is not studies, the more important is the environment there actually, right? The competitiveness which comes when you are seeing others people study, you are lagging behind, and there is a cutthroat competition, right? Because like अगर आपका तुम्हारा rank नहीं आया, then you will move to a downgraded batch जहाँ पे teachers वो top teachers नहीं होंगे, right? So and they won't give too much attention to you, so you will always want to go into top batches actually, right? तो वो कंपटीशन का था, तो लाइक एवरीवेयर योर नेक इज ऑन द लाइन एक्चुअली, राइट? कि कौन राइट, तो वो था. हाँ, एंजॉयमेंट के लिए भी चीज़ें थी वहाँ पे, बट हाँ वो जैसे 10 रुपये एक घंटे में साइबर कैफे जा सकते थे आराम से, वहाँ पे सारा वो मूवीज़ का कलेक्शन होता था. अच्छा. और वो 11, अगर आप 10-11 बजे तक साइबर कैफे में, वो शटर बंद कर देंगे 11 बजे, सुबह 4 बजे छोड़ेंगे आपको. 5 घंटे बैठ के करो जो करना है वहाँ पे. तो एंड इट वाज ए फेम एंड द कैफे यूज्ड टू रन ऑल नाइट एक्चुअली. तो अगर रात को मूवी देखे हो 4 बजे खुलेगा शटर, 4 बजे के बाद ही निकल सकते हो. तो ये रात को जागना और दिन में सोने की आदत जो अभी भी चल रही है, वहां से शुरू हुई थी? वो तो चलती ही है. मतलब इनफैक्ट ये चलती रही थी, इंजीनियरिंग में भी चलती रही थी ऐसे, मतलब. बट हाँ, बट वहाँ पे हाँ, मतलब आई डोंट रिमेम्बर, बट हाँ मेरे नाइट आउट्स तो बहुत मारता था वहाँ पे भी. और ये करा इतनी ज़्यादा मूवीज़ नहीं देखी हैं. अगर मतलब इतनी ज़्यादा अगर मान भी लूँगा देखी हैं, तो घर वाले फिर बोलेंगे क्या किया तुमने. तो बट हाँ 4 बजे तक मतलब ये था कि हाँ सुबह उठ के पोहा जलेबी खा लिया. 4 बजे पोहा जलेबी मिलता था वहाँ पे. हाँ, वो खाया और जाके सो गए. उसके बाद 8-9-10 बजे क्लास शुरू होंगी, तब जाओगे तुम क्लास करने. तो वैसा था. गुड डेज, मतलब वो अच्छे दिन होते हैं वो बेसिकली. मतलब अगर आप इफ यू लुक बैक, उस टाइम आप इसको गालियां भी निकालते हो इस वाली जर्नी को. तो उसके बाद इंजीनियरिंग लाइक एनआईटी दुर्गापुर. I used to run. I thought about running from NIT दुर्गापुर actually. So मतलब मेरे को दुर्गापुर इतना पसंद नहीं आया पहले दिन जब मैं गया. फर्स्ट टाइम गया तो वहाँ पे एक तो वहाँ पे रैगिंग बहुत होती थी दुर्गापुर के अंदर उस टाइम पे. तो मतलब बट रैगिंग, इट वाज फेमस फॉर रैगिंग. लाइक देयर वर सम इंस्टीट्यूट्स लाइक जहाँ पे रैगिंग उस टाइम तक शायद रैगिंग बैन इतना शुरू नहीं हुआ था ना. रैगिंग मतलब इट वाज स्टिल बैंड एक्चुअली. एंड सो फर्स्ट ईयर के अंदर बेसिकली होता था कि आप के हॉस्टल के आसपास सिक्योरिटी होता था. जब जहाँ भी आप जा रहे हो आपके साथ सिक्योरिटी कंपनी करेगा, सो दैट यू आर नॉट रैग्ड एक्चुअली, राइट? बट वो भी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ही रह सकते हैं आपके साथ, राइट? वो आपके साथ क्लास में तो जाएंगे नहीं, वो आप मेन बिल्डिंग तक आपको जाके छोड़ देंगे. वापस आते हैं तेरा 400 स्टूडेंट्स, राइट? विद तो सबके साथ एक सिक्योरिटी गार्ड तो भेजेंगे नहीं. सुबह 8 बजे तो लेके जाके छोड़ देंगे सबको वहाँ पे. जब वापस जब जिसकी क्लास खत्म होगी तब आएगा, राइट? तब तो कोई सिक्योरिटी हो नहीं सकती ना. बट इट्स नॉट फिजिबल एट ऑल. तब सीनियर्स पकड़ के ले जाएंगे आपको, राइट? एंड तो वो अटेंडेंस होती थी, वो सब होता था. और साथ में मतलब एकदम कल्चर चेंज था, राइट? तुम नॉर्थ से जा रहे हो, सीधा वेस्ट बंगाल में जा रहे हो, खाना कम्प्लीटली डिफरेंट है. मतलब और मेस का खाना खा रहे हो पहली बार अचानक से. और बेसिकली मतलब दाल के अंदर मीठा, पतली दाल मीठी, वो खाने की आदत कहाँ थी कभी भी. हाथ से खाना, अब चम्मच ही नहीं था वहाँ पे. और वो सब तो वो था. और दूसरा फिर मेरा था कि हाँ मतलब आई हैड फैसिनेशन फॉर नॉर्थ साइड. तो मतलब पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर काउंसलिंग के लिए जाना था कि हाँ वहाँ पे चलो सिविल मिल जाए तो मैं वहाँ चला जाऊँगा. तो बट वहाँ से जाना अलाउड नहीं था NIT दुर्गापुर से. यू कुडंट गो आउट. सो इवन फॉर गेटिंग द काउंसलिंग आई हैड टू टेक परमिशन फ्रॉम डायरेक्टर. तो उसके लिए भी बड़ी अप्रोच वगैरह लगानी पड़ती थी कि मतलब कि कैसे डायरेक्टर के पास जाओ, एप्लीकेशन दो, इतने सारे सिस्टम्स के बीच में एंड ऑल दैट. तो हाँ वहाँ पे मैंने किया, ट्राई किया, पर वहाँ पे भी नहीं हुआ. मतलब वहाँ पे शायद हुआ था कि नहीं हुआ था मुझे याद नहीं, शायद नहीं हुआ था. बट जो भी था फिर आई स्टक टू NIT दुर्गापुर. हाँ तो मतलब बट हाँ पहले 1 महीना आई वॉज अनसेटल्ड देयर. तो आई वॉज ट्राइंग टू सी कुछ और मिल जाए, कुछ और मिल जाए. बट 1 महीने के बाद जब रियलाइजेशन हो गया कि कुछ और नहीं मिलने वाला, तो रहो यहीं पे. तो क्या और उसके बाद how did college life turn out to be? The college life turned out to be really great actually. Like I have still very good friends from that days actually. तो मतलब again the engineering was all about making friends in my opinion rather than learning, क्योंकि मुझे तो पता भी नहीं क्या पढ़ाया था. नंबर्स अच्छे आए थे, ठीक है, जो पढ़ाया था यूज तो होता नहीं है ज़्यादा. मतलब unless until you are into that field. And in fact many of the courses, right, so they are not used in engineering, right? तो वहाँ पे जाके आप कोडिंग करनी है, वो आप नहीं से सीखते हो. वहाँ पे जाके कितना ही पॉइंटर्स पढ़ लो, कितना ही कुछ कर लो, आपको वहाँ पे जाके जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे रियल वर्ल्ड में, तो आपको समझ भी नहीं आएगी. तो कॉलेज में कुछ ऐसा बनना शुरू हो रहा था थॉट प्रोसेस की क्या करना है,
प्लेसमेंट्स का सीन कैसा होता था? यार उस टाइम पे ना मतलब ऐसा होता था कि एनआईटी यूज्ड टू बी वन प्लेस जहाँ पे आपकी प्लेसमेंट हो जाती थी, राइट? तो उस टाइम तक अभी तक एनआईटीज में वो ड्रीम कंपनी का कॉन्सेप्ट नहीं आया था, मतलब जब हम गए थे, दिस इज 2004, राइट? तो उस टाइम स्टिल TCS, IBM and CTSs of the world were like taking people in masses, जिनकी उसमें जॉब लग जाती थी वो खुश रहते थे. तो आई रिमेंबर दैट इंसिडेंट. Me, my father and my friend and my friend's father entered into the college on the first day, right? And when they'd come to drop us actually, तो वो उसके एक सीनियर था हिसार के ही मिले थे, उनसे पूछा कहाँ प्लेसमेंट होने का, TCS कितने का पैकेज लगा. सबका कुछ नहीं होता है हमेशा, कितने का पैकेज लगा. आई थिंक इस सेड 2.4 लाख और 3 लाख. उस टाइम तो लगा कि यार बहुत अच्छा है, मतलब हम तो दैट उस टाइम तो ये लग रहा था कि हाँ लाइफ सेट होगी, इतने सारे पैसे लाइफ सेट होगी. तो यही हुआ था एग्जैक्टली, मतलब दैट वाज द रिएक्शन. हाँ ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है. एंड इट दैट थॉट प्रोसेस केप्ट इवॉल्विंग. तो नेक्स्ट ईयर से IBM आने लग गया, तो लोगों को IBM में लग गया, तो IBM में 3.6 लाख मिलते थे. तो हो गया कि अच्छा अब IBM टारगेट करेंगे, TCS में नहीं जाएंगे, राइट? तो 3 सेकंड से थर्ड ईयर में माइक्रोसॉफ्ट आने लगी. थर्ड ईयर में माइक्रोसॉफ्ट आ गई, तो माइक्रोसॉफ्ट उस टाइम 8-10 लाख लेती थी. अब माइक्रोसॉफ्ट में जाना है, कुछ और आ गया तो कुछ पे जाना है. तो गोल पोस्ट केप्ट ऑन चेंजिंग एक्चुअली, राइट? तो कि हाँ यही जाना है, इसमें करना है. फिर साथ में था कि अच्छा फिर एक नया कीड़ा था सबको, कैट का थर्ड ईयर में लगना शुरू होता है. फर्स्ट सेकंड ईयर में तो चिल मारते हैं, थर्ड ईयर में अच्छा अब तो इंजीनियरिंग कर ली, अब सबको MBA करनी है. तो कैट का कीड़ा था, तो वहाँ पे कैट की कोचिंग शुरू हो जाती है. तो वो टाइम, हाँ वो करने को कर लिया था. मतलब जो सब ऐसा है कि फोमो है ना, मिस नहीं करना, कुछ भी करते रहो, सब कुछ करते रहेंगे, सब कुछ करते रहो, जो होगा देखेंगे, बाद में देखते हैं. ठीक है. तो कर लिया था टाइम ज्वाइन वहाँ पे. वही वो टारगेट करने के लिए आते ही थे टाइम के कॉलेज के अंदर. वो अपनी मार्केटिंग तो करते ही थे कि हाँ आओ, और फिर उसके बाद वो क्लासेस भी लगती थी. तो स्कॉलरशिप टेस्ट दो वहाँ पे, पैसे थोड़े कम हो जाते थे, और जाके अच्छा आप स्कॉलरशिप ले ली थी? पूरी स्कॉलरशिप तो नहीं मिली थी, शायद नहीं मिलती थी. मतलब जो भी था, मतलब कम हो जाते थे पैसे, वो तो सबको ही कम करते ही हैं, थोड़ा बहुत तो करते ही हैं, राइट? तो था, बट हाँ वो जाना शुरू कर दिया था. तो आई थिंक जब मैंने ज्वाइन किया था इंजीनियरिंग, तब 4th ईयर में जाके प्लेसमेंट शुरू होती थी. बट जब तक हमारे प्लेसमेंट का टाइम है, तब तक थर्ड ईयर एंड से ही शुरू होना शुरू हो गई थी. हाँ तो मतलब अच्छा था. और बीच में फिर वो होता था कि आपको वो करना है, बेसिकली समर इंटर्नशिप करनी है एंड ऑल दैट करनी है, राइट? तो मेरे कुछ फ्रेंड्स IIT में गए हुए थे उस टाइम के ऊपर, तो मैंने समर इंटर्नशिप वगैरह के लिए आई यूज टू सी कि मुझे भी, बिकॉज IIT यूज टू डू इंटर्नशिप आउटसाइड इंडिया एक्चुअली, मतलब जर्मनी वगैरह चले गए, क्योंकि वहाँ कॉलेज स्कॉलरशिप दे. तो मैंने भी ट्राई करना शुरू कर दिया था एक्चुअली वहाँ पे, कि मैं बाहर जाके इंटर्नशिप करूँगा. कि मतलब वो करते हैं तो देखते हैं, मतलब मैंने अपना पासपोर्ट बनवा लिया कि हाँ मिल जाएगी, मैं भी करूँ. तो मैंने मेल करना शुरू कर दिया था प्रोफेसर को, ऐसे ही सारे. तो एक आधी जगह रिप्लाई भी आया, तो बट वो था कि उन्होंने स्पॉन्सर नहीं किया कि तुम आने जाने का खर्चा तुम दो और वो सब करो, या फिर तुम्हें पैसे मिलेंगे. तो फिर नहीं गया मैं वहाँ पे कहीं भी. बट हाँ तो मैंने वो किया था कि मैंने फिर, बट देन आई स्टार्टेड टॉकिंग टू IIT प्रोफेसर्स बेसिकली, कि बिकॉज IIT में भी इंटर्नशिप होती है एंड यू कैन वर्क अंडर IIT प्रोफेसर. तो उस टाइम VLSI का शौक चढ़ा था मुझे. तो फिर मैंने IIT का रुड़की में एक VLSI के प्रोफेसर थे, उनसे बात की. तो उन्होंने मेरे को मतलब इंटर्नशिप के लिए किया. तो हम साथ में मेरे एक दो फ्रेंड्स के साथ हम IIT रुड़की गए 2 महीने के लिए इंटर्नशिप के लिए, आई थिंक. तो वो वाला ट्रेंड भी शुरू हो गया था, मतलब. बट इट वाज लाइक कि मैंने ये सारा के सारा चीज़ें अपने दूसरे फ्रेंड्स को देख के किया था. मतलब ये NIT में ट्रेंड नहीं था इस चीज़ का करने का, कि कुछ करना है, मतलब नॉर्मली सर्टिफिकेट लाने के लिए होती थी उस टाइम तक. तो ये सब था. और साथ में वो गेमिंग का तो था ही, इंजीनियरिंग का. ठीक है, पूरा दिन गेम खेलनी है, रात पूरी दिन नहीं, रात में. तो रात में पूरा गेम खेलनी है, FIFA खेलनी है, काउंटर स्ट्राइक खेलनी है. पूरा हमने लैन, मतलब सिस्टम ना रखे थे अपने, लैन चलता था हमारा. उसके बाद खेलते थे पूरा आराम से, पूरी रात खेलते थे. सुबह सो जाते थे, एक बंदा चला जाता था क्लास, जो प्रॉक्सी मार के आ जाता था सबकी 8-10 बंदों की. हाँ तो बस यही चला. उसके बाद पढ़ाई तो करी नहीं वहाँ पे भी. पढ़ाई तो एक दिन में होती थी, और एक दिन में नंबर आ जाते थे. नंबर की दिक्कत होती नहीं थी कभी. तो चिल था उस मामले में. तो फिर प्लेसमेंट्स का क्या सीन बना? प्लेसमेंट का सीन तो ये था कि मतलब अगेन TCS आई पहले. उससे पहले TCS थी, आई थिंक सेकंड वाज IBM, फिर विप्रो, वो सब आता था. तो आई डिडंट सिट फॉर TCS. मेरे को IBM में जाना था, क्योंकि तब तक था कि एक IBM में जाओ, और IBM में बट मेरा फिर IBM में नहीं हुआ.
ठीक है। तो और फिर विप्रो वाज द लास्ट कंपनी एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर, अच्छा, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर सॉरी, ओके, क्योंकि उसके बाद ब्रेक हो जाना था। हाँ, एंड आई TCS IBM मिला के 70% ऑफ कॉलेज वाज प्लेस्ड, ओके, क्योंकि वो ले ही जाते हैं मास में, राइट? हाँ, TCS जैसे आई थिंक दे वुड हैव पिक्ड अबाउट 200 स्टूडेंट्स ऑड, एंड IBM वुड हैव पिक्ड अबाउट 50-60 स्टूडेंट्स ऑड। विप्रो वाज द नेक्स्ट रिक्रूटर इन लाइन। तो मेरा मतलब मन नहीं था विप्रो में बैठने का, बट मैंने कर लिया, मतलब एंड देयर वाज प्रेशर एक्चुअली कि हाँ ले लो एक तो। बाद में ड्रीम कंपनी का कॉन्सेप्ट आ गया था तब तक। तो विप्रो में किया, तो विप्रो में हो गया था। तो तब तक तो ये सब हुआ यहाँ पे। उसके बाद ये थर्ड ईयर एंड था। फोर्थ ईयर के अंदर फिर दोबारा से ड्रीम कंपनी का कॉन्सेप्ट था हमारे यहाँ पे, तो वी कुड सिट फॉर वन मोर कंपनी। तो उस टाइम पे काफ़ी तेजस नेटवर्क्स आए, सिस्को आई, उसमें भी नहीं हुआ, तेजस में भी नहीं हुआ, सिस्को में भी नहीं हुआ, ठीक है। तो रिलायंस एनर्जी में हुआ। तो रिलायंस एनर्जी का पैकेज सही था, अच्छा था पैकेज, ऐसा नहीं था। और साथ में आई थिंक उसके ये था कि अ, उस टाइम तक शायद नहीं पता था, बट ये था कि उसका शायद प्लेसमेंट हिसार में ही हो जाएगा, कि या फिर नॉर्थ साइड में हो जाएगा प्लेसमेंट उनके पावर पॉइंट्स के, पावर प्लांट, रिलायंस एनर्जी वो पावर प्लांट्स, रिलायंस पावर के लिए आए थे वो सारे के उसका सारे। स्टॉक बहुत फेमस हुआ था ना, आईपीओ आया था अब वो और वही फिर था कि नहीं था उस टाइम पे, तो स्टॉक अच्छा, की क्या समझ थी अब हाँ, तो। बट हाँ ये था। उसके बाद फिर रिलायंस एनर्जी से कॉलेज में लग गया, कॉलेज रिलायंस एनर्जी में लग गया, विप्रो में लग गया, तो दोनों में लग गया था। उसके बाद तो फिर 2 जॉब्स एंड यूर आउट, यू कांट सिट एनी फर्दर इन द दिस थिंग। तो उसके बाद कोई और प्लेसमेंट नहीं हुआ। बट वो तो था ही कि मतलब आई वाज नॉट सेटिस्फाइड विद द जॉब्स आई गॉट फ्रॉम कॉलेज, ओके, कि नहीं कुछ और करना है, कुछ और करना है। तो फिर मतलब आई यूज्ड टू ट्राई ऑफ कैंपस। तो वो एक कैरियर नेट करके एक वो होती थी हाँ, हाँ, कि, करियर नेट, वो तो बहुत सारे, हाँ, उनका कोई वो अपना टेस्ट लेते थे, हाँ, उसके हाँ, बेसिस हाँ, के ऊपर मल्टीपल कंपनीज अपना करेक्ट, वो इंटरव्यू कॉल्स के लिए बुलाती थी, करेक्ट, राइट? ये सब दिया था फिर कॉलेज के अंदर मैंने, बट वो इंटरव्यू कॉल्स फोर्थ ईयर के बाद आई, जब मैंने पास आउट हो चुका था। तो फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर कॉलेज में तो मस्त मस्ती करने वाला ही था। ऐसे ही हम 3-4 लोगों के फ्रेंड्स था, हमने रोड ट्रिप वगैरह मारी, पूरा राजस्थान घूमा और वो सब किया। फाइनली में तो बिल्कुल पढ़े ही नहीं। उस जब हो गया था प्लेसमेंट वगैरह, उसके बाद तो फाइनली ख़त्म करके जस्ट वेंट बैक। उसके बाद एंड दैट वाज एंड ऑफ इंजीनियरिंग। उसके बाद फिर ऑफ कैंपस मेरा हुआवे में हो गया था, कैरियर नेट के थ्रू। ओके, हुआवे थ्रू हाँ, करियर नेट, थ्रू कैरियर नेट, तो ओके, इट वाज नॉट थ्रू तो कैंपस। तो हुआवे वाज योर फर्स्ट कंपनी, Huawei was my first company. I ओके, didn't join Reliance Energy and ओके, Wipro. ओके, I joined Huawei, and the reason was that I was interested in networking at that point of time. ओके, तो वो नेटवर्किंग थी मतलब वो भी नेटवर्किंग की साइड थी। उस टाइम तक पता नहीं होता राउटर क्या होता है, बस वो ये पता था कि एक वो कौन सा 7 लेयर्स होते हैं नेटवर्क के, और ये सब चीज़ें होती हैं। वो बुकिश नॉलेज थी, वो अच्छी लगती थी बस। हाँ ठीक है, चलो ये नेटवर्किंग कंपनी है, टेलीकॉम कंपनी है, चलो इसमें चलते हैं। तो वहाँ पे तो आई ज्वाइंड हुआवे फर्स्ट टाइम आई केम टू बैंगलोर, सो दैट वाज माय लाइफ। so we'll hear about your professional journey from Huawei and how did you make progress in the next episode. Stay tuned. We'll be back in episode 2 of Vikas's Not So Famous Story and see how he made progress, और ये engineering करता करता product manager कैसे बन गया Amazon में. So we'll get to know more about that. We'll be back in episode 2.